to continue the lesson which we have started previous day. Lesson number 8, Brave Queen. So let me share the screen with you. So here you have the lesson, The Brave Queen by Ritu Singh. And there you have started, you were learning of the Rani Lakshmi Bai, whose name was Manu Manikarnika, and his father was Marupant Tambe, and yes, he was the courtier of the Maratha ruler Bajirao II. And so now you have learned that Manu's marriage proposal had come, yes, and the name here, who was that? The Gangadhar Rao, yes. So here marriage proposal had come, and so who was that? Gangadhar Rao is a good man, so the parents were agreed to be married. So now we'll study the scene 3. Yes, scene 3 we'll study. So at the scene of the wedding festivals are on, the state priest of Jhansi addresses Tambe. Okay. What state priest is telling? It is our privilege and joy to have such a noble queen. She will surely bring honor to the name of Jhansi. So the priest जो है पुरोहित, what he said is a privilege. इसे मेरा भाग्य है क्या? And joy is very happy to have such a noble queen. She will surely bring honor to the name of Jhansi. तो झांसी का सम्मान लेके आएंगे. So this is scene 3. In scene 3 mein what you see, the wedding festival is going on. Whose wedding festival? Rani. Jhansi ki Rani, his name was Manu. So now in scene 4 we'll study what is in scene 4. Let's see what narrator is explaining. Narrator, as the wheel of life turns, means here it is talking about the wheel of life turns, means the time passes. As the time passes, the Rani of Jhansi faces many so Rani of Jhansi faces many challenges. Her happiest moment is when a son is born to her in 1851, but 3 months later, the baby dies. See here what narrator is explaining. He said, as the wheel of life turns, matlab as the time passes, the Rani of Jhansi faces many challenges. झांसी का रानी जो है उनका लाइफ में बहुत challenges आता है, difficulties आता है. Her happiest moment is when a son is born to her in 1851. So in 1851 was the happiest moment for Rani. Why? Because now she got a son, her son born in that day. Okay, so that's what she was very happy. So that was happiest moment in her life. But 3 months later, the baby dies. But when the baby is 3 months, the baby dies. So that is the very sad moment. So the first is happiest moment when her son born, but after 3 months, the baby dies. At the fort of Jhansi, Gangadhar Rao and Rani Lakshmi Bai are in a serious discussion. So in that scene, what you see, Jhansi का जो fort है, उसमें Gangadhar Rao means this one is husband of Rani Lakshmi Bai and Rani Lakshmi दोनों मिलके कुछ serious discussion कर रहे हैं. So are in a serious discussion, कुछ discuss कर रहे हैं. Okay, let's see what is that discussion. Gangadhar. See, Gangadhar Rao, it means, Manu, I am very worried. The British are rapidly gaining power, and now there is a new law. It says that if a king dies without leaving an heir, his kingdom will be taken over by the British. So, what Gangadhar is telling to Manu? He said he is worried. Why? The British are rapidly gaining power because the British जो है रैपिडली मतलब बहुत फास्ट वो उनका पावर बढ़ रहा है. ब्रिटिश का पावर बढ़ रहा है. गेनिंग पावर मतलब उनका पावर ज़्यादा हो रहा है. क्यों? एंड नाउ देयर इज ए न्यू लॉ. उनका न्यू एक लॉ है. इट सेज दैट इफ ए किंग डाइज, अगर इफ ए किंग डाइज विदाउट लिविंग एंड हेयर, जो कोई अगर किंग जो है
मर जाता है, अगर उनका कोई सक्सेसर नहीं होता है, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, कोई किंग मरने से बाद उनका राज देखभाल करने के लिए नहीं होता है, तो क्या होता है, हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। देन उनका जो राज्य है क्या होगा, वो ब्रिटिश के अंडर में चले जाएंगे। तो अगर कोई किंग का कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं होता है, कोई सक्सेसर नहीं होता है, सन और डॉटर कोई अगर नहीं होता है, तो फिर उनका जो किंगडम जो है वो ब्रिटिश के अंडर चले जाएंगे। तो ये न्यू रूल जो है, लॉ जो है पास हुआ है। तो ये गंगाधर राव ने रानी को बताया। लेट्स सी व्हाट रानी सेज। रानी, यस आई नो the cunning British have taken over many kingdoms like this, and our son is no more. तो रानी इज टेलिंग यस, रानी से यस आई नो, मुझे पता है। एंड द कनिंग ब्रिटिश, में ब्रिटिश जो है बहुत ही क्लेवर है, हाँ? तो वे क्या, दे हैव टेकन ओवर मेनी किंगडम्स, ऐसा करके वो बहुत सारा किंगडम जो उनके पास में ले लिया, ऐसा करके जिस जो किंगडम में कोई उत्तराधिकारी कोई सक्सेसर नहीं होता है, तो किंगडम उन्होंने ले लेता है। तो ऐसा करके किंगडम उन्होंने ले लिया है, ऐसा। एंड आवर सन इज नो मोर, हमारा बच्चा जो था अभी तो मर गया, अभी नो मोर, हाँ, बच्चा भी नहीं है, तो हमारा पास भी कोई सक्सेसर अभी नहीं है, तो हमारा राज्य भी ऐसे करके ले सकता है। तो रानी भी ऐसे बोल रहा है। देन व्हाट गंगाधर इज टेलिंग, गंगाधर, वी कुड अडॉप्ट ए सन इफ यू एग्री। देन उन्होंने क्या बताया, हम बच्चे अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब किसी कोई बच्चे को हम हमारे पास रखेंगे। हम्म, तो इफ यू एग्री, हम कोई बच्चे को हमारे पास रखेंगे अगर आप राजी हो तो, एग्री हो तो फिर रानी से आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। रानी व्हाट शी सेड, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट, मीन्स मुझे बहुत ही आनंद होगा ऐसा करने में। So here I already told the meaning, the wheel of life turns means time passes. Okay. Now we'll go to scene 5. Scene 5 में देखेंगे narrator Lakshmi Bai and Gangadhar Rao adopt a son and call him Damodar Rao. So Lakshmi Bai and Gangadhar Rao क्या है, adopt a son. So जैसे ही सोचा था वैसा ही किया है। गंगाधर राव जो है दोनों मिलके एक सान लड़का जो है इसको अडॉप्ट किया है, उसका नाम है दामोदर राव। दामोदर राव उनका नाम है। बट फेट हैज अनदर ट्रेजेडी इन स्टोर फॉर द रानी। बट रानी के भाग्य में और कुछ लिखा है, दुर्भाग्य है। क्या है, द डे आफ्टर देयर सन कम्स होम गंगाधर राव पासेस अवे। तो क्या होता है, जब जिस दिन उनका सन वो अडॉप्टेड जो सन उसको लेके आता है, दूसरा दिन ही गंगाधर राव की पासेस है, मीन्स मर जाता है, ही डाइड। तो ये भी बहुत ही दुर्भाग्य है रानी के लिए। तो ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन एज हिज सक्सेसर, ही इज नॉट ग्रांटेड द राइट टू रूल। सो ब्रिटिश क्या कर, ब्रिटिश रिफ्यूज कर देते हैं, दे डो नॉट रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन। ओके, नहीं, सो सक्सेसर एज हिज सक्सेसर। सो ब्रिटिश क्या करता है, इग्नोर करता है, रिफ्यूज कर देता है, जो दिस अडेप्टेशन कैन नॉट बी सक्सेसर, एक आपका राज्य का राजा नहीं हो सकता है। सो ही इज नॉट ग्रांटेड द राइट ऑफ द रूल, उनको हम ग्रांटेड नहीं करेंगे आपको जो राज्य है उसमें रूल करने के लिए, ही हैज नो राइट। ये जो है नैरेटर अभी एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। अभी देखिए क्या होता है। सो वन डे एट द फोर्ट ऑफ झांसी। सो सीन्स 5 में क्या है, झांसी का फोर्ट में क्या हो रहा है, कोटियर अनाउंसेस मेजर एलिस टू सी द रानी। जो कोटियर जो है वो अनाउंस कर रहा है क्या, मेजर एलिस टू सी रानी, मेजर एलिस इज कमिंग टू मीट रानी। The major enters and he's seated. So here we see in the scene, Major he comes and he sits. Rani, then what Rani tell to Major? Rani, Major Ellis, I have written many letters to the Government General, Lord Dalhousie, regarding my son. Why, why is my son not being granted the right to rule? So what Rani is telling to Major Ellis, she's telling,
I have written many letters to the government general. Who is that government general? Lord Dalhousie. So Rani is telling मैंने बहुत सारा लेटर लिखा है गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डालहौसी है उनको रिगार्ड उस किसके बारे में लिखा लेटर लिखा था रिगार्डिंग माय सन मतलब मेरे लड़का के बारे में मैं बहुत सारा लेटर लिखा है गवर्नर जनरल को क्या लिखा है उसमें व्हाई इज माय सन नॉट बीइंग ग्रांटेड द राइट ऑफ द टू रूल मतलब मेरा लड़का को क्यों अधिकार नहीं होगा मेरे राज्य को चलाने में तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा लेटर गवर्नर को लिखा है लेट्स सी व्हाट मेजर एलिस टेल मेजर एलिस because he is only an adopted son Rani Lakshmibai he cannot be the heir to the throne and regarding yourself I have an order from the governor general of India you are to leave the fort and live in palace in the city the fort of Jhansi will now come under British protection so here what Major Ali is telling he's telling because he is only an adopted son of रानी लक्ष्मी तो रानी लक्ष्मी ये राज्य नहीं चला सकता है क्योंकि ये आपका खुद का लड़का नहीं है खुद का नहीं है आपने इसको अडॉप्ट किया है तो उसको राइट नहीं है ही कैनॉट बी द हेयर टू द थ्रोन आपका सिंह राज्य का वो राजा नहीं हो सकता है एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ मीन्स रिगार्डिंग यू क्या करना है आई हैव एन ऑर्डर तो आपके लिए एक ऑर्डर है मुझे रिलीज रानी को बोले आपके लिए एक ऑर्डर है क्या ऑर्डर क्या है फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ने क्या किया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उससे आपके लिए ऑर्डर है यू आर टू लीव द फोर्ट एंड लिव इन ए पैलेस इन द सिटी सो आपको फोर्ट आपका जो फोर्ट है उसको आपको त्याग करके आपको सिटी में जाना है सिटी में जो पैलेस है वहाँ पे जाके रहना है द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन अभी ये जो फोर्ट जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएंगे प्रोटेक्शन में आ जाएंगे तो ये मेजर एलिस जो है रानी को बताया है लेट्स सी व्हाट रानी सेज रानी प्रोटेक्शन फ्रॉम whom हाउ अनजस्ट योर लॉ आर shall I shall appeal against this order तो रानी को गुस्सा आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम whom क्यों किसको प्रोटेक्शन करना है ये बहुत ही हाउ अनजस्ट योर लॉ आपका जो लॉ है बहुत ही अनजस्ट है मतलब कोई जस्टिस नहीं है इसमें बहुत अन्याय है हाँ सो आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर मैंने इसको अपील करेंगे मतलब इसको कोर्ट में इसको हम करेंगे प्रतिवाद करेंगे इसको हम डिफेंस करेंगे ये जो लॉ जो है ये मैं मानते नहीं इसलिए हम कोर्ट में अपील करेंगे इसको तो फिर लेट्स सी व्हाट हैपेन इन सीन 6 नैरेटर बट द अपील इज टर्न डाउन मतलब रानी जो अपील किया था उसको टर्न डाउन मतलब वो कार्य नहीं हो कुछ नहीं हुआ उसका Lakshmibai and her son lived quietly in the palace at Jhansi for 3 years until 1857 when the mutiny breaks down. तो क्या होता रानी का जो अपील जो किया था वो किसी ने उनको अपील माना नहीं है कुछ किया नहीं है तो उसकी वजह से रानी एंड उनका जो अडॉप्टेड सन है दोनों क्वाइटली चुपचाप पैलेस में जाके रहने लगा जो जहाँ पे ब्रिटिश उनको रहने के लिए कहा था they went there and they were there for 3 years 3 साल था and 1857 में जब तक 1857 when the mutiny breaks down मतलब पहला जो फ्रीडम ओके mutiny में क्या मतलब जब फर्स्ट फ्रीडम टेक प्लेस हुआ हाँ इंडिपेंडेंस हुआ टुक प्लेस इन 1857 में तब तक रानी पैलेस में था एट द रानीज पैलेस 1 by 1 तो ये अभी क्या होगा रानी पैलेस में है उसमें कुछ न्यूज आ रहा है तो ये अभी ये सीन 6 में हो रहा है देखिए एट द रानीज पैलेस 1 by 1 द मैसेंजर्स रिपोर्ट्स द लेटेस्ट न्यूज मैसेंजर 1 रानी देयर इज ए chaos all around soldiers are refusing to use their rifle cartridges तो मैसेंजर 1 जो है रानी को क्या मैसेज लेके आता है रानी
there is a chaos. Chaos means there is a disorder. No one is following the rule, regulation. So that is disorder all around, everywhere. Soldiers are refusing. जो सैनिक जो है, सिपाही जो है, वो क्या कहते हैं? They are refusing to use their rifle cartridges. Means they are not using their rifle. ए मैसेंजर वन जो है वो रानी को बताया. मैसेंजर टू, these soldiers have been dismissed and thrown into prison. Now मैसेंजर टू ने क्या कहा है? ये जो सोल्जर्स जो रिफ्यूज किया था मतलब राइफल यूज करने लिए, उनको लिए क्या है, वो सोल्जर्स को डिसमिस किया है और उसको जेल में डाल दिया है. ओके, तो ये मैसेंजर्स टू में है. मैसेंजर्स टू ईरानी को बताया. मैसेंजर्स थ्री, बट अदर सिपाहीज हैव किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिसर. देन मैसेंजर थ्री वो क्या संवाद लेके आए? उन्होंने बोल रहे हैं जो सिपाही, बाकी कुछ सिपाही है, उन्होंने क्या किया है? ब्रिटिश, बहुत सारा ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया है. तो पहला मैसेंजर वन जो बोल रहे हैं, जो देयर से केओस मतलब एवरीवेयर इज डिसऑर्डर, जो सिपाही है, जो सोल्जर्स है, वो राइफल यूज करने से मना कर दिया. मैसेंजर टू ने बोल रहे हैं उनके वजह से बहुत सारा सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया, मतलब उसको निकाल दिया है जॉब से, और कोई कुछ सारा है जिसको जेल में भी डाल दिया है. तो मैसेंजर थ्री ने क्या कहा है? तो उसमें से कुछ सिपाही जो है वो क्या किया है? जो ब्रिटिश सोल्जर जो ऑफिसर है उनको मार दिया है. हाँ, दे किल मेनी ब्रिटिश ऑफिसर. लेट्स सी व्हाट मैसेंजर्स फोर से. मैसेंजर्स फोर, लॉन्ग लाइव द एम्परर ऑफ इंडिया, द सिपाही हैव crowned बहादुर शाह जाफर किंग एट दिल्ली. तो मैसेंजर फोर बोल रहे हैं अभी जो एम्परर ऑफ इंडिया है उनका नाम है बहादुर शाह किंग. इस बहादुर शाह जाफर उनको सिपाही जो है उसको राजा किया है, मतलब उसको लीडर बनाया है. ये सो लॉन्ग लिव एम्परर ऑफ इंडिया. एम्परर ऑफ इंडिया कौन है यहाँ पे? बहादुर शाह जाफर. ओके, उनको लीडर किया है दिल्ली में. नाउ लेट्स सी व्हाट रानी इज टेलिंग नाउ हियर. रानी thoughtfully उन्होंने सोचा, yes, now this is the time to act. I am certain we can regain the fort. The force guarding it is weak and unprepared. Give the call to our soldiers, prepare for battle. So now here this is the time to attack now. Now we have to act out. आई एम सर्टेन वी कैन रीगेन द फोर्ट. नाउ हमारा जो फोर्ट जो है जो ब्रिटिश के अंडर चलेगा उसको हम फिर से मेरे पास लेके आ सकते हैं. अभी क्या है, जो फोर्स जो है वो गार्डिंग जो है वो अभी वीक हो गया, क्योंकि बहुत सारा जो सोल्जर्स जो है अभी वो क्या मीट नहीं कर रहे हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं राइफल यूज करने के लिए. तो अभी वो वीक है, अनप्रिपेयर है. तो अभी मैं क्या करेंगे, हमारा जो सोल्जर्स है उसको हम प्रिपेयर करेंगे बैटल के लिए. सो गिव द कॉल टू आवर सोल्जर्स, प्रिपेयर फॉर द बैटल. So here the mutiny means India's first war of India, independence. Yes, this is first. Actually, this is was okay. First war होगा ये. First war of independence. Mutiny. Okay, now we'll go to scene 7. So let's see what in scene 7 happened. Okay. So I think we have to stop this. Little only remain. So I'll stop it over here because the time is now very little time is remain. So maybe I'll continue with the next video and we'll finish the lesson. So or you can finish reading this lesson. I'll stop over here. Okay, thank you students. Let me stop the video over here. Okay.